اللہ 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 لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 حقه حقه حق 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 ربنا سو رب فلق حقه 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 حق ربنا سو رب فلق غیر نہیں تیرا مطلق غیر نہیں تیرا مطلق بھولوں گا میں یہ نہ سبق اللہ 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 ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ حق 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 اللہ اللہ حق 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 اللہ اللہ رب 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 سبحان اللہ 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 واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 عدل کرے تا عدل کرے تا عدل کرے تا عدل کرے عدل کرے تا تر تر کمن اچیا شان والے عدل کرے تا تر تر کمن اچیا شان والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اس وقت میں کرلا قریش نگر سنی قبرستان میں جو بہت ہی عظیم بارگاہ ہے، بہت ہی پیاری بارگاہ ہے، جہاں سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، جہاں سے لوگوں کو رزق میں برکت کا ذریعہ ملتا ہے، جہاں سے لوگ آنے والے کبھی محروم نہیں جاتے. الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بابا کے چاہنے والے، یہ خدام، یہ اشاعت، یہ نوجوانوں کی ایک ٹیم، ایک گروپ موجود ہے. اور الحمدللہ اس وقت میں حضرت سیدنا مولانا بابا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ گوہر بار میں حاضر ہوں. یہ بارگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی ہی پرانوار بارگاہ ہے، بڑی ہی پیاری، بڑی ہی معزز معتبر بارگاہ ہے، بڑی ہی عظمت اور رفعت والی بارگاہ ہے کہ یقیناً یہاں آنے والا بندہ سکون و چین کی دولت کو پا لیتا ہے. الحمدللہ اس وقت میں یہاں درگاہ شریف کے خادم صاحب جناب ریاض بھائی کے ساتھ موجود ہوں جو میرے قریب میں ہیں، الحمدللہ جو درگاہ شریف پر کافی سالوں سے خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. بابا آپ سے خدمت لے رہے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے بھی خوش نصیبی ہے، بڑی ہی کامیابی کی بات ہے. آئیے انہی کی زبانی کچھ باتیں سنتے ہیں کہ یہ کتنے سالوں سے یہاں پر ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا چیزیں مشاہدہ کیا، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی اللہ، آپ یہاں کتنے سالوں سے اور آپ نے یہاں اپنی آنکھوں سے کتنوں کو آتا ہوا دیکھا، کتنوں کی مرادیں پوری ہوئی. یقیناً ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ یہاں سے آنے والا جب جاتا ہے تو خالی نہیں جاتا، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہوگی جو آپ نے اپنا آنکھوں سے مشاہدہ کیا، کوئی ایسا واقعہ یا کسی نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہو. واقعہ تو سرکار کا بہت ہے. میں یہاں پر 1991 سے بابری مسجد کی شہادت سے 1 سال پہلے سے ہوں اور سرکار کی کرامت تو ایسی ایسی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ ہمارے ایک بچہ خدمت گزار ہے ابھی سرکار کا، وہ اس کا نام ہے محمد، اس کے والد صاحب جو ہے نام ہے ان کا شمشاد بھائی. تو بابا ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں نے انہیں کہا کہ وہ بچہ ختم ہو گیا ہے. وہ گھر جانے کے بجائے سرکار کی چوکھٹ پہ لا کر چھوڑ دیا اور 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا بیٹھ گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد میں وہ ہاتھ پر ہلایا بچہ. یہ ایک کرامت. پھر دوسری
कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक शख्स है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो वो सब रेस कोर्स वाले यहाँ मतलब गलत लोग बैठते थे इस जगह के ऊपर उस टाइम पहले जब मैं नहीं था, जो बाहर का हाँ, सहन है। हाँ बाहर के सहन में। तो सरकार ने पता नहीं क्या गुस्ताखी किया, उसको ऐसा यहाँ से ऐसा धक्का मारे जब फेंका गया है तो वो समझ लो सिराज बाबा की बाउंड्री पार करके गया। ये करामत है सरकार की। नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, समझे, उसको पर्दे में रखा हुआ है। तो ऐसी काफ़ी करामतें हैं सरकार की, क्या क्या बताइए। तो आप यहाँ काफ़ी साल से 1991 साल 91 से हाँ। उस वक्त से लेकर अब तक। जी जी। तो माशाल्लाह अभी जो बाबा के उर्से पाक ये किस दिन होता है? ये वासी देवासी को होता है सरकार का। वासी को गुस्ल होता है, देवासी को संगल होता है, और चौथे दिन जो है वो कुल की फातिया होती है। अब कल वाले दिन जो है कुल की फातिया है। आइएगा आप इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। तो माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जो आपके साथ में जी जुड़े जी जी, ये सब माशाल्लाह खिदमतगार है, सब पुतानी है, कंधे से कंधा मिलाकर शाना व शाना हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ लंगर का भी एहतमाम जी करते जी हैं जी, सब लोग कुछ माशाल्लाह, फातिहा पानी। जी जी, सब कुछ होता है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आपने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि यकीनन यहाँ पर रियाज बाबा जो काफ़ी सालों से यहाँ खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ जो ये नौजवान अल्लाह मेरे करीब ये फैयाज भाई जो मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और माशाल्लाह बाबा के खादिम भी हैं, यहाँ अलहमदा रहते हैं, तो यकीनन यहाँ जो भी आता है वो नवाजा जाता है। मैं आपको यहाँ एक और अपने एक भाई का वाक़या बताऊँ कि उन्होंने खुद बयान किया था कि एक मरतबा कोई काम की डील थी जो वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि एंड मोमेंट पे सामने वाले ने मना कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या कि वो यहाँ बारगाह में हाजिरी दिए और बाबा की बारगाह में दुआ गो हुए, और फिर जब यहाँ से लौट रहे थे तो उन्होंने खुद बताया, अल्लाह इस बात का शाहिद है कि वो कब्रिस्तान गेट तक ही तकरीबन पहुँचे थे कि उन्हें फिर सामने वाली पार्टी का फोन आया। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने अभी आपसे डील कैंसिल किया था मैं फिर से आपको वो दोबारा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भाई भी यहाँ मौजूद है और जिन्होंने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से बाबा की करामत देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ मैं एक बात और बताऊँ, जिस तरह रियाज बाबा ने बताया कि एक शख्स ने यहाँ बैठ कर कोई बेअदबी वाले काम किए तो उसको ऐसी पटकी मिली, वो यहाँ से दूर जाके गिरा। तो यकीनन मेरे वालिद साहब भी बताते हैं कि जो बाबा मौलाना शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये बारगाह ये बड़ी अच्छा, वो जलाली गिरा जी। एक करामत है। ये भी है कि वो उस दिन जो बदतमीजी किया उसको फेंका गया सरकार ने अंदर से, जो भी मामला है। तो बस वो लोग समझ जाएंगे, खैर मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था। बस उसके दूसरे दिन से वो मौज़िन बन गया और इतनी प्यारी अजान देता था, लोग उसकी अजान का इंतजार करते थे सुनने की। कुछ लोग समझ जाएंगे मेरे इशारे को, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का। मोहब्बत से कहिए सुभान। ये भी एक बात है, उसके अंदर उस दिन की तारीख से वो सुधर गया, और जो लोग बाहर बैठे थे उनको वो इबरत मिल गई। टोटल रेस कोर्स वाले थे, जब जुगारी लोग थे वो, तो सरकार ने ऐसा ये किया कि उसमें कुछ सुधर गए और वो तो मौज़िन बन गया। यानी ये भी बात मालूम हुई कि बाबा अगर किसी को पटकी भी दे तो यकीनन इसमें उसी का फिर भला हो जाए। देखिए ये मेरा आपका हमारा मामला है कि हम किसी से नाराज हो तो हम सामने वाले के लिए बद्दुआ कर दें कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ये अल्लाह वाले तो हमेशा लोगों को नवाजते ही है। और यकीनन ये बारगाह ऐसी बारगाह जलाली बारगाह कि यहाँ आने वाला बहुत ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाता। ये बात भी है, यानी कि बारगाह में आए फातिहा पढ़ के यानी कोई ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाता है। 2 घंटा आज भी कोई नहीं बैठता, भले वो तिलावत ही क्यों ना कर रहा हो। हाँ। ये ऐसी करामत है सरकार जी। अब पता नहीं मिजाज बदल गया, एसी लग गई, ठंडक हो गई, सरकार थोड़ा निजाम बदल जाए तो आपकी मर्जी की बात है वो। क्योंकि अल्लाह के वलियों में भी कोई जलाली होते हैं और कोई जमाली होते हैं, है ना। जिस तरह एक नौजवान को यही सवाल था कि जलाली और जमाली वली में क्या फर्क है, तो उसने ये सवाल किसी अल्लाह वाले से किया, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे पता बताता हूँ, तू फला जगह जा और वहाँ जाकर वो बाबा जो होंगे वो कड़िंगर बेचते हो, है ना, 4 चक्के की गाड़ी, तो जाकर उनके साथ में कोई ऐसी हरकत करना कि जिससे उनको जला ले। तो वो नौजवान गया, फिर आप ही ने कहा कि और जगह जाना और वहाँ जाकर भी कोई ऐसी हरकत करना जिससे उनको जला ले। अब देख लेना कि जलाली कौन है और जमाली कौन है। अब वो नौजवान निकला और जब उस पते पर पहुंचा जहाँ वो एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, वो कड़िंगर बेचते थे, है ना, ये आपकी रोजी का जरिया था। वो आया, सलाम दुआ की और कहा बाबा एक दिखाओ, एक पीस। उन्होंने काट कर दिया, उसने खाया, फिर कहा कि ये तो टेस्टी नहीं है ना, इसका तो मजा सही नहीं। उसने कहा दूसरा ला, आपने फिर दूसरा दिया, फिर उसने वो भी खाया, अच्छा था, लेकिन उसने जानबूझकर कहा ये भी सही नहीं लगा,
तीसरा लाओ, आपने और खिलाया, अपने पेट भर के खा लिया, फिर बाद में कहता है कि नहीं इसमें मजा ही नहीं आया, क्या करूं, पैसा दूं के लिए? तो आपने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, चले जाओ, अच्छा नहीं लगा तो पैसा किस बात का, वो चला गया। फिर वो समझ गया कि ये बाबा जमाली है, जलाली नहीं। अब वो दूसरे पते पर पहुंचे, वहाँ एक वली थे, बुजुर्ग थे, वो लोगों को मशकीजे से पानी पिलाते थे। तो वहाँ पहुंचा और कहा बाबा मुझे पानी पिलाओ। तो जब ग्लास में पानी दिया गया तो उसने एक पिया नहीं बल्कि वो पानी लेकर फेंक दिया, और फिर आया, फिर दोबारा कहा और दो, फिर आपने दोबारा दिया, फिर उसने पिया नहीं, क्योंकि पीता तो पेट भर जाता ना, पानी प्यास बुझती, लेकिन उसको मस्ती नहीं करना था, नहीं कोई ऐसी हरकत करना था जिससे मालूम पड़े कि ये जलाली है या जमाली है। फिर उन्होंने तीसरी बार आया, तो अब जैसी आया तो आपने जोर से तमाचा रख दिया और आपने कहा मुझे कड़िंगड़ वाला मत समझना। क्या कहा? मुझे कड़िंगड़ वाला वो नहीं समझना। आपने कहा कि वो जमाली थे और मैं जलाली हूँ। तो यकीनन अल्लाह के वलियों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उनके भी अलग अलग मकाम होते हैं, मरातिब होते हैं, लेकिन यकीनन हमारे दिल में हर वली की मोहब्बत है। और मैं कहूँ तो बिल्कुल ये बात बेजानी होगी, बल्कि बिल्कुल सही है कि अल्लाह का शुक्र करें कि आप और मैं जहाँ रहते, यहाँ सुन्नी कब्रिस्तान में एक नहीं बल्कि कितनी सारी बारगाह है, और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाजिरी हुई। हुजूर मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप ये बारगाह शरीफ को देख सकते हैं माशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं कि यकीनन जब किसी वली का उर्स होता है तो यहाँ देखिए सब लोग नवाजे जाते हैं। आप देखिए जिन्होंने यहाँ फूलों की चादर पेश की तो यहाँ फूल वालों का भला हुआ है ना, जो लंगर के एहतमाम करते हैं भटियारे का है ना, भैया उसका भी भला होता है, जो इत्र पेश करते हैं इत्र वाले का भला होता है। बात समझ, तो हर एक का इसमें भला ही होता है। और यकीनन अगर सारे लोग आकर यहाँ जितना भी कुछ पेश करें तो इस पर उस बंदे की दुनिया व आखिरत संवर जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुफ्तगू आज के इतनी काफ़ी है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ माशाल्लाह खुदा माने मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैह और ख़ास तौर पर रियाज बाबा इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी रहते हैं अपने घर पर ही रहकर बाबा के नाम पर फातिहा ज़रूर करें, लंगर तकसीम करें, और जितना हो सके आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो हज़रत मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बाबा आलिम दीन, यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं वो आलिम दीन होते हैं। याद रहे कि कभी कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हुजूर गरीब नवाज हिंदल वली रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान है कि कभी कोई जाहिल अल्लाह का वली हरगिज नहीं बन सकता, बल्कि अल्लाह का वली वही होता है जिससे अल्लाह दीन का इल्म अता फरमाता है हमेशा। तो हमारे जो बाबा है यहाँ पर यकीनन आप मौलाना है और आपको शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, मौलाना बाबा शहीद, क्योंकि आप दुश्मनों से लड़ते लड़ते आप शहीद हुए थे। और याद रहे कि कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। हाँ, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है, यानी ये बात हमारी अक्ल से ऊपर है, हम नहीं समझ सकते कि वो किस तरह से जिंदा है, लेकिन यकीनन कुरान ने कह दिया कि अल्लाह का हर वली यानी जो अल्लाह की राह में शहीद हो तो यकीनन वो अल्लाह का दोस्त होता है, और जो अल्लाह का दोस्त यानी शहीद हो तो यकीनन फिर वो अपनी कब्र अनवर में जिंदा रहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, ये बारगाह बहुत ही अजीम बारगाह है और बहुत ही पुरानी यानी सुन्नी कब्रिस्तान में जो बहुत पहले से यहाँ पर बारगाह मौजूद है, तो उन्हीं में हजरत मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह भी इसमें शामिल है। आप देखें जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं। आप देखिए ये लोग अपने घर बार को छोड़कर यानी यहाँ पर जब बारगाह में हाजिरी देने आए, यहाँ जो खिदमत का काम अंजाम देते हैं। आप देखिए एक इंसान अपने घर में एक चीज यहाँ सेवा उठा के जल्दी नहीं रखता, लेकिन जब किसी वली की बारगाह में आता है तो वही काम नहीं बल्कि उससे बढ़कर और ज्यादा काम भी दिल लगी से करता है। आप देखिए अगर आप मुझसे पूछे या मैं आपसे पूछूं या मैं इनसे कहूँ क्या कभी आपने अपने घर में झाड़ू लगाया, जवाब नहीं का होगा, है ना, शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने बारगाह में झाड़ू दिया है तो हर कोई कहेगा हाँ भाई मैंने हमने दिया, और मैं देने के लिए आगे बढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वली की बारगाह, क्योंकि यहाँ आप देखिए जो भी आता है वो दिल से काम करता है। और एक चीज जो मैंने नोटिस की वो आपने भी शायद किया होगा कि आप किसी भी वली के उर्स में जाए तो यकीनन जब वहाँ पर जो नौजवान होते हैं जो लंगर तकसीम करते हैं वो बड़े मोहब्बती होते हैं, यानी जो आने वाले ज़ाहिरीन हैं तो उनसे पूछते हैं भाई आपने खाया कि है ना, इस तरह भाई नियाज का एहतमाम है। गोया एक वली की बारगाह में आने के बाद
लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवान हो, एक और आप चीज देखें कि जब किसी वली की बारगाह में कोई आता है तो अगर सर पर टोपी नहीं थी, लेकिन जैसी वली की बारगाह में आए तो सर पे टोपी आ जाती है, इंसान वुजू भी करके आता है। अच्छा, किसी वली की बारगाह में आए तो इंसान बिल्कुल मुअद्दब बनकर आता है, अगरचे बाहर वो कितना ही कुछ करता हो, लेकिन जैसे ही वली की बारगाह में आए तो फौरन हाथ बांध करके अदब में हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये मेरे करीब फैयाज है मौजूद है माशाल्लाह। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? तकरीबन 7 साल माशाल्लाह। ये हमारे फैयाज भाई है माशाल्लाह, है ना, उर्से पाक में आते हैं, यूं भी मुझे मैंने खुद देखा है कि यूं भी सादे दिन भी आते हैं। चल के करीब आपका नाम भाई? सकलैन माशाल्लाह। सकलैन भाई, आप भी यहाँ बारगाह से कितने सालों से? 10 साल। अच्छा, तकरीबन आपको भी 10 साल से माशाल्लाह उर्से पाक में आता है माशाल्लाह। सब बच्चे खिदमत करते दरबार के लिए। अच्छा माशाल्लाह, साल बढ़ सकते हिस्सा लेते हैं। वली इनको पसंद किए हैं, कोई इनका काम कही हमें औकात ही नहीं मिली। सरकार बोले कोई बड़ी बात नहीं है, तो जितने ये है सरकार के सब करने वाले हैं। तो अल्लाह ने आपको भेजा कि आप आगे बढ़ के हिस्सा लें, और ऐसे अभी और ही वली आने वाले हैं। हिंदुस्तान है, यहाँ तो बादशाह की खेती है, तो आका ने हिंद को पसंद किया, लंदन दफा अमेरिका को हिंद को पसंद किया कि हिंद से महक आ रही। तो आप साहिबों लोग बोलते हैं ऐसा कैसे, तो बोलते नहीं हिंद में हमारे वली आराम फरमा रहे हैं। तो ये हिंद का सिलसिला चला रहे सरकार, हमारा कुछ नहीं। सब बाबा ने अपने को वली बना रहे, कोई वली बनना चाहते ही नहीं। शुरू मकाम चली आएगी ना, हम से अच्छे आएंगे, उनसे अच्छे आएंगे, वो आएंगे, आने वाले रुकने वाले। आप भी यहाँ कब से कितने साल? सरकार को मैं गिलाम बदलते हैं। अभी आप खिदमत का काम जी हाँ, ये सब बच्चे अपना शासन। आपका नाम भाई? ये हमारे छोटे। अच्छा माशाल्लाह। आप भी यहाँ कितने सालों से? मुझे भी यहाँ पे तकरीबन हो गया 9-10 साल हो गया है। मैं काफ़ी छोटेपन से भी आता था, बचपन से खिदमत किए सब बच्चे। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा वो था, सबको तो पसंद नहीं, सब भाग जाते, कुछ दिखता नहीं है। बहुत बड़ी जी जी माशाल्लाह। यहाँ के इख्तिताम है। मतलब आपने खुद भी अपनी आंखों से कुछ देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद भी बहुत सारी देखने की बात रही तो हमारी जो दिल की तमन्ना होती है, जो भी हम सरकार से मुराद करते हैं जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी हुई। माशाल्लाह बेशक मैंने यकीनन सरकार से जो कुछ भी मांगा वो मुझे आता होगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यकीनन कहा जाता है ना कि बिना बुलाए कोई किसी के घर भी नहीं जाता, तो जब कोई किसी के घर बगैर बुलाए नहीं जाता तो गोया ये वली की सरकार बारगाह कहलवार है, में- ये बाबा आपसे कहलवार है। इसकी औकात जरूर है, मौका में सो जाएंगे आवाज घंटे, सुबह उठेंगे क्या चैनल है आपको देखना है, कौन सा चैनल है, कि बहुत तेज वक्त बाबा को करेंगे। आप सरकार की शादी हम बराती है, ये सब बराती लोग हैं सरकार की, तो आपको ये फॉलो करना है। सरकार का मामला है, आपको खड़ा किए बाबा ने, तो सरकार आपसे करवा रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, बाबा नहीं रहेंगे ना। कितने हजार दुनिया चलेगी, इसको क्या मालूम है, सरकार अब रहेगी। हम जिंदा हैं, हम जब तक ये, लेकिन बाबा की जो बारगाह है तो यहाँ हमारे बाद भी लोग आए और हमसे पहले भी कई सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग आए होंगे। यकीनन इस बारगाह से मुस्तफीद हुए, है ना, यहाँ से फीज़ व बरकत हासिल किए। क्योंकि याद रहे कि हमारी जिंदगी का एक वक्त है जो कि पूरा हो जाएगा तो हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के वली का दरबार कभी खाली नहीं रहेगा। अच्छा, अगर कोई ये भी सोचे ना कि मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर, यानी अगर मैं नहीं आऊँगा तो याद रहे कि उसके ना आने से यहाँ कुछ नहीं, बल्कि उसके ना आने से उसी की मुराद रह जाएगी। अगर वो आएगा तो इंशाल्लाह मन की मुराद वो खुद पाएगा माशाल्लाह। और भी हमारे भाई आप ये यहाँ का काम इसलिए किया बच्चे ने, जो पूरा सजाया हर साल इससे खिदमत देते हैं। अच्छा, आप भी हो जो हाँ, आप दोनों भाई माशाल्लाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद अशरफ। आपका? मोहम्मद हमीद शेख। माशाल्लाह। आपका भाई? छोटे बाबा आप? शाकिर वारस। साथी तो आप लोग यानी ये जो माशाल्लाह बारगाह में हाँ, ये सब सजावट डेकोरेशन का काम ये आप लोग ने अंजाम दिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर आपको दोनों जहां में अता फरमाए माशाल्लाह। यकीनन आपने वली की बारगाह में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ सजाया है ना, इंशाल्लाह बाबा अपनी शान के मुताबिक आपको देंगे इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमाए। यकीनन ये बारगाह बड़ी अजीम है, यहाँ मेरे वालिद मोहतरम भी अक्सर व बेशतर आया करते हैं।
मेरे भाई भी आया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे दोस्त अहबाब, और सबने यही बताया कि यहाँ आने के बाद एक दिल को सुकून मिलता है। आप देखें ना, वली की बारगाह में आए तो दिल को एक करार मिलता है, एक चैन मिलता है, रूहानी वीजा मिलती है, कहीं की सुकून आप बोल सकते हैं बाबा जी की सरकार नवाजे में खड़े आप। सुभान अल्लाह, सही, एक रूहानी ग़िज़ा मिलती है। जिस इंसान खाता पीता है तो जिस्मानी ग़िज़ा है, और वली की बारगाह में आए तो एक रूहानी ग़िज़ा, यानी गोया रूह में ताकत आ जाए। तो अल्लाह ने ईमान को ताकत दी, 500 पे भाली अब ना दोनों से बड़ी सारी बीमारी भाग जाएगी। अल्लाह ने उनको ईमान दिया ना, माशाअल्लाह, बेशक ईमान वाले तो खेलेगा, सब फेल हो जाएगा उसका। बेशक यकीनन यहाँ आने वाले जो ईमान वाले होते हैं, जो आशिक़ रसूल होते हैं, तो यकीनन वो मन की मुरादें पाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको, मेरे दोस्त अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मौलाना बाबा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सदका अता फरमाए। आमीन।